السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے دنیا کے ایک ایسے ملک کی جس میں دنیا کا سب سے پہلا شہر آباد ہوا۔ دنیا کا ایک ایسا ملک جس کا قانون بہت سخت ہے اور اسی وجہ سے اسے دوسرا نارتھ کوریا بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا ملک جس میں تیل اور گیس کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ اسی ملک میں جہنم کا دروازہ بھی موجود ہے اور یہ دنیا کا واحد مسلم ملک ہے جس میں داڑھی رکھنے پر پابندی ہے۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں وسطی ایشیا کے ملک ترکمانستان کی، جو آبادی کے لحاظ سے وسط ایشیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ ترکمانستان کی سرحدیں مشرق میں افغانستان، شمال مغرب میں قازقستان اور جنوب میں ایران کے ساتھ ملتی ہیں۔ یوں اس کو 4 ملکوں اور ایک سمندر نے گھیرا ہوا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس کی آبادی سب سے کم ہے۔ اگر ترکمانستان کی تاریخ کی بات کی جائے تو یہ ہزاروں سال پرانی ہے۔ جب قوم نوح پر سیلاب اور بارش کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے 3 بیٹوں اور ان لوگوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے۔ اس کے علاوہ ہر وہ جانور اور ہر پرندے کا ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار کر لیا۔ اس میں دنیا کے تمام سرکش اور نافرمان لوگ فنا ہو گئے، وہی لوگ محفوظ ہو گئے جو کشتی میں سوار تھے۔ یہ کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے 3 بیٹوں کو حکم دیا، تم تینوں اپنے اہل و عیال کے ساتھ الگ الگ بستیوں میں جا کر آباد ہو جاؤ۔ جب تمہاری نسل بڑھ جائے تو اس جگہ کو اپنا مسکن بنا لینا۔ یہ کہہ کر آپ سرزمین مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ان سب کی نسل آگے بڑھی تو کچھ لوگ ترکمانستان کی زمین پر آباد ہو گئے۔ وہاں ایک شہر تعمیر کیا گیا جس کا نام مرو ہے۔ یہ 3000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے، جس کی آبادی ہزاروں کی تعداد میں تھی۔ یہ دنیا کے اولین شہروں میں سے ایک تھا۔ 2000 قبل مسیح میں یورپی لوگوں کا گزر اس شہر کے قریب سے ہوا۔ کچھ انڈو یورپی لوگ اس شہر میں آباد ہو گئے۔ برِ صغیر اور عرب کے ساتھ ساتھ اس پورے علاقے پر 570 قبل مسیح میں آغا منشی سلطنت قائم ہوئی، جو پوری دنیا کی وسیع ترین سلطنت کا درجہ رکھتی تھی۔ اس سلطنت کا آخری بادشاہ سارے سونگ تھا، جس کا مقابلہ 330 قبل مسیح میں سکندر اعظم سے ہوا تھا، اور سکندر اعظم نے اس سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور اس ریاست کے تمام شہروں کو آگ لگا دی۔ آج بھی یہ شہر اپنی باقیات کے ساتھ ترکمانستان میں موجود ہے۔ اس کے بعد منگولوں نے بھی اس علاقے پر لمبے عرصے تک حکومت کی۔ منگولوں نے ترکمانستان میں ایک دن کے اندر تقریباً 20 لاکھ آدمیوں کو قتل کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ میں ایک دن میں ہونے والی اتنی ہلاکتوں کا پہلا تاریخی ریکارڈ تھا۔ 12ویں صدی سے 14ویں صدی تک منگول اس پر حکومت کرتے رہے، لیکن بعد میں امیر تیمور نے اسے تاتاری سلطنت کا حصہ بنا دیا۔ اس کے بعد ترکمانستان بخارا سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 18ویں صدی میں یہاں کچھ عرصے کے لیے نادر شاہ کی بھی حکومت قائم رہی۔ دوستو، نادر شاہ صرف 6 سال تک کی اپنی حکومت قائم رکھ سکا۔ اس حکومت کا خاتمہ پہلی جنگ عظیم کے وقت ہوا۔ 1918 سے 1924 تک ترکمانستان نے روس کے ساتھ اتحاد کیا۔ جب سوویت یونین کمزور ہوئی تو کئی نئی ریاستیں قائم ہوئیں اور ترکمانستان نے بھی اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ 26 ستمبر 1991 کو ترکمانستان کی آزادی کو تسلیم کر لیا گیا۔ پاکستان وہ واحد ملک تھا جس نے سب سے پہلے ترکمانستان کی آزادی کو تسلیم کیا تھا۔ دوستو، ترکمانستان کا کل رقبہ 4,90,000 کلومیٹر کے قریب ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 52 نمبر پر بڑا ملک ہے۔ ترکمانستان کی کل آبادی 7 ملین کے قریب ہے۔ اس ملک میں اوسطاً فی مربع میٹر میں تقریباً 15 افراد رہائش پذیر ہیں۔ ترکمانستان کا شہر اشک آباد ملک کا دارالحکومت ہے، جسے اشک آباد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس شہر میں دنیا کا سب سے اونچا جھنڈا لگایا ہوا ہے، جس کی اونچائی 135 میٹر ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 18 لاکھ کے قریب ہے، یعنی ترکمانستان کی کل آبادی کا 25% اسی شہر میں آباد ہے۔ اس شہر کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ سفید سنگ مرمر کی بلڈنگ بنانے کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ اس شہر میں آپ کو ہر طرف سفید رنگ کی عمارتیں نظر آئیں گی جو بے حد حسین اور خوبصورت ہیں۔ اسلام ترکمانستان کا سب سے بڑا مذہب ہے، جس کی تقریباً
85% आबादी मुस्लिम है। तर्कमानी इस मुल्क की कौमी और सरकारी ज़बान है जो कि मुल्क की 80% के करीब आबादी बोलती है। वस्ती एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद इसी मुल्क में है जिसे तर्कमानी बाशी रोही मस्जिद के नाम से जाना जाता है। आप लोग पूरा मुल्क घूम लें, आपको हर जगह सफ़ेद गाड़ियाँ, सफ़ेद और 8 कोनों वाला सितारा नज़र आएगा। दोस्तों, तर्कमानिस्तान गैस और तेल के ज़खायर रखने वाला दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। तर्कमानिस्तान का ज़्यादातर हिस्सा सहराए कराकरम ने घेरा हुआ है। ये वही सहरा है जिसके नीचे कुदरत के तर्कमानिस्तान को दिए हुए अजीम तोहफे मौजूद हैं। इनमें तेल और गैस का नाम सरफहरिस्त है। 1991 में तर्कमानिस्तान ने आज़ादी हासिल की और 1993 में तर्कमानिस्तान के पहले सदर मुराद मियां ज़ाफ ने यह ऐलान कर दिया कि इस कौम के लिए बिजली, गैस और तेल फ्री मुहैया कर दिया गया। अवाम में इस सदर की इस कदर मकबूलियत हुई कि इन्हें इनकी मौत तक इस मुल्क का सदर बना दिया गया। 2000 में तर्कमान न्यूज़ कास्टरों को मेकअप करने पर पाबंदी लगा दी गई क्योंकि इनके लिए मर्द और खतून न्यूज़ कास्टर में फ़र्क करना मुश्किल हो गया। मुल्क में 15% आबादी सनत, 40% ज़राअत और 18% सरकारी मुलाजिम और 20% के करीब लोग छोटे मोटे कारोबार से वाबस्ता हैं। मुराद मियाँ के दौर में गाड़ियों में रेडियो सुनने पर पाबंदी आयद कर दी गई। शराब नोशी तो दूर की बात, मुल्क में सिगरेट नोशी पर भी पाबंदी आयद थी, ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजमीन पर। अगर कोई सरकारी मुलाजिम सिगरेट नोशी करता पकड़ा जाता तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती। इसके अलावा मुराद के बारे में एक और भी बात मशहूर है, इन्हें अपनी तारीफ करवाने का बहुत शौक़ था क्योंकि मुराद मियाँ ने बहुत से शहरों और हवाई अड्डों के नाम अपने नाम से मंसूब कर रखे थे। उन्होंने अपने लिए कई आलीशान महल और मुजस्मे भी बनवाए थे, यहाँ तक कि एक शाबी पत्थर को अपना नाम दिया हुआ था। दोस्तों, आपने जहन्नम के दरवाजे के बारे में तो सुना होगा जो कि तर्कमानिस्तान में मौजूद 70 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा गड्ढा है। लोगों का कहना है कि इसका ताल्लुक जहन्नम के साथ है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। एक गांव में एक कुदरती गैस का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। 1971 में इस कुएँ में एक हादसा रुनमा हो गया जिसकी वजह से इस कुएँ से इथाइल गैस निकल आई जो कि नुकसानदेह थी। वहाँ पर मौजूद लोगों ने इस कुएँ में आग लगा दी ताकि गैस खारिज होते ही जल जाए। इन लोगों का ये ख्याल था कि आग कुछ देर बाद बुझ जाएगी, लेकिन वो आग आज 50 साल के बाद भी जल रही है, जिसे आज दुनिया गेट ऑफ हेल के नाम से जानती है। पिछले 5 साल से 1 लाख के करीब सियाह इस जगह का दौरा कर चुके हैं। मुल्क की 90% कारोबारी आबादी को कारोबार करने में हुकूमत ने मदद फराहम की है। एक ये भी वजह है कि जिसने तर्कमानिस्तान की मईशत काफ़ी मजबूत बना रखी है। मुल्क में कानून पर सख्ती के साथ अमल किया जाता है। मुल्क में पुलिस वाले मौजूद हैं, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी कोई नहीं करता। आपको बुराक पत्थरों से बनी हुई इमारतें और इन पर किया गया रैशी काम भी इस तरह दिखाई देता है जिस तरह किसी बादशाह का महल हो, लेकिन इन सब के बावजूद आपको हर तरफ वीरानी ही वीरानी नज़र आएगी, जैसे शहर में कोई तबाही मचा गया हो। सड़कों पर ट्रैफिक की इंतहाई कम तादाद इस मुल्क की सड़कों और खूबसूरत इमारतों में ज़िंदगी की वो रौनक दिखाई नहीं देती जो लाहौर, इस्लामाबाद या दिल्ली जैसे शहरों में देखने को मिलती है। इस मुल्क में जीन्स पहनने पर पाबंदी है और आने वाले सियाहों से भी यही दरख्वास्त की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर 70 साल से कम उम्र अफराद दाढ़ी नहीं रख सकते, 70 साल से ऊपर अफराद दाढ़ी रख सकते हैं। तर्कमानिस्तान में हर माह हर गरीब खानदान को मुफ्त नमक, चावल, आटा और दूसरा घरेलू राशन दिया जाता है। तर्कमानिस्तान इन चंद ममालिक में पाया जाता है जहाँ 4 मौसम पाए जाते हैं। यहाँ मौसम इंतहाई खुशगवार होता है। गर्मियों में दर्जा हरारत 50 डिग्री से भी बढ़ जाता है और मौसम सरमा में दर्जा हरारत 0 डिग्री तक पहुँच जाता है। तर्कमानिस्तान में तालीम की शरह 90% के करीब है। तर्कमानिस्तान में कुल 128 एयरपोर्ट हैं जो कि इस मुल्क की आबादी के लिहाज से बहुत ज़्यादा हैं। तर्कमानिस्तान पाकिस्तान से 1000 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। पाकिस्तान में तकरीबन 2 लाख के करीब तर्कमानिस्तान के लोग आबाद हैं। 1990 में तकरीबन 60,000 लोग पाकिस्तान आए थे जो कि अब 2 लाख के करीब हो गए हैं। तर्कमानिस्तान में मीडिया पर हर तरह से पाबंदी है। कोई भी हसास खबर सरकारी इजाज़त के बगैर नशर करना एक जुर्म है। तर्कमानिस्तान ईरान और अफगानिस्तान के साथ बजरिया रेल मुंसलिक है।
जबकि ये दूसरे मुल्कों के साथ भी रेल का जाल बिछा रहा है। इस मुल्क की सिर्फ 4% आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल जानती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा काश्त की जाने वाली फसल कपास की है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कपास एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक में तुर्कमानिस्तान 9वें नंबर पर आता है। सियाहत का शोबा तुर्कमानिस्तान में ना होने के बराबर है। तुर्कमानिस्तान के लोग घोड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इनके साथ लोगों का लगाव बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोग घोड़ों को अपने ख़ानदान का मेंबर समझते हैं। इसके अलावा तुर्कमानिस्तान का कालीन दुनिया भर में मशहूर है। तुर्कमानिस्तान हर साल बड़ी तादाद में रेशमी कपड़ा और कालीन पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। तुर्कमानिस्तान के लोग बहुत ही मिलनसार होते हैं और आप इनसे बआसानी दोस्ती कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नगहबान।